पूजा भी जिया भी है। थोड़ा बस चलो हरे कृष्ण। Switch. नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Jai Jaya Jai Shri Harinam Sankirtan ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshur Udmitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Welcome all of you. Please summarize Yes, sure. what we have studied till now in Bhagavad Gita. From chapter 1. Yes, from chapter 1. From chapter 1, we learned that the 5 things that Arjuna has been nominated for to fight the war. Okay, which are the 5 things? First is compassion towards relatives and friends. Okay, Second one is loss of enjoyment. okay, Third one is fear of sinful activities. okay. Very Ratani Maharaj, I know it. I'm just These are notes of Neha Mataji. no. He was writing my notes every morning. Okay. कितने हो गए? 4 हो गए ना? 3 हो गए? चार हाँ तो 5वां indecision है. Simple. That is in the 2.7. 2.6 or 7. Yeah. And in the second chapter, the last verse, that is verse number 12. Yes. Impersonal. Yeah. So God is impersonal or personal? Personal. Yes, Neha Mataji. Personal. Impersonal. God is impersonal. So why do you offer food to God?
He's personal. How can he eat if he is impersonal? He cannot eat, right? Yes. He cannot hear our prayers. So God is impersonal, also personal. These are the two manifestations of God. Actually three. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagwaniti Shabdate. Brahmeti means Brahma Jyoti. जो भगवान के शरीर से निकलता है तेज, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति. That is the impersonal manifestation of the Lord. और उसके आगे एक स्तर रहता है, that is परमात्मा. उसके और आगे एक स्तर रहता है, that is भगवान. So Paramatma is localized form of the Lord within our heart, and Bhagwan is the supreme Lord who incarnates and who is there in the spiritual world. तो हमने 12वें श्लोक में, थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करो, बहुत विस्तार से देखा था. हरे कृष्णा. मैं वीडियो ओके? Yes. हाँ. तो हमने विस्तार से देखा था कि किस प्रकार भगवान निराकार नहीं है, साकार है. उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है निराकार या साकार. साकार यानी कि सब आकार, विद आकार, आकार यानी कि फॉर्म. निराकार मतलब नी मतलब नो, विदाउट एनी आकार. तो जनरली संसार में जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, वो सब भगवान को निराकार ही मानते हैं. Why? Because उनको जो अंडरस्टैंडिंग है, that is not complete understanding, that is partial understanding of God. The complete understanding is when you see God in His full manifestation, right? जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को किसी ने ऑफिस में देखा है, लेकिन घर में नहीं देखा है उसको, तो उसको पूरा नहीं देखा है उसने. क्योंकि ऑफिस में देखना एक अलग बात होती है और घर में देखना अलग बात होती है. ऑफिस में बहुत फॉर्मल रह सकता है वो, एकदम कड़ा, सिर्फ यस सर और नो सर. घर में आएगा तो कैसे रहेगा वो? रिलैक्स. झगड़ा भी करेगा, गुस्सा भी करेगा, प्रेम भी करेगा, बराबर? She is agreeing. But Question is वो फॉर्म छोड़ते ही नहीं है ना. सेम फॉर्म घर पे भी आता है. अच्छा, वो कभी कभी पहले 6 महीने बीत गए ना. हाँ, तो अभी घर ऑफिस कभी कभी एक हो जाता है. आपने भी बनाया था दिवाली में, बड़ा बनाया था. अच्छा, आपका हो गया. मालूम है क्या आप सबको? बिजनेस में बन गई है. टर्नओवर कितना है? ओके, प्राइवेटली करके डिस्कस कर लें. ओके, so that's all. So that was the verse number 12. Now, as we move ahead in the Bhagavad Gita, verse number 13, which is one of the most popular, most often quoted by Srila Prabhupada, that is verse number 13. और ये सबको याद होना चाहिए. श्लोक नंबर 13. So we can repeat after me. Dehinosmin yatha dehe Kaumaram yauvanam jara Tatha dehantar praktir Dhirastatra namuhyati. Yeah. Anyone who can read the translation? As the embodied soul continuously passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Hare Krishna. So these are the two new entries. Yes. Hare Krishna. Welcome, both of you. So we are studying Bhagavad Gita. Yes. And we are on the second chapter. Second chapter, verse number 13. Just so that you can connect. Yes. इसके पहले आपने स्टडी किया था फर्स्ट अध्याय में किस प्रकार अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण से उपदेश मांगते हैं. तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं. इस 13वें श्लोक से यहाँ से चालू हुआ है. So there is one word embodied.
इसको हिंदी में कहते हैं देहधारी। देहधारी समझते हैं आप लोग? शस्त्रधारी मतलब जो शस्त्र को धारण करता है। सोल ने बॉडी को धारण किया। हाँ, तो हम ये बॉडी नहीं है, हमने ये बॉडी क्या किया है? धारण किया है, राइट? वी आर ऑक्युपाइंग दिस बॉडी जस्ट लाइक यू आर ऑक्युपाइंग दिस फ्लैट। आर यू द फ्लैट? समझ में आया डिफरेंस? Similarly, there is a car. So there is a owner of the car. Owner of the car is not the car. There is a difference between car and the owner of the car. और दोनों का खाना अलग अलग होता है। कार का भोजन क्या है? फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी आप जो लगाते हैं आपका इलेक्ट्रिक। और हमारा भोजन क्या है? मतलब फूड व्हाटएवर दैट यू टेक। नहीं तो प्रसाद बोलेगा तो लोग डर जाएंगे, इतना सा है क्या? बाहर प्रसाद इतना ही देते हैं। So only within ISKCON you get प्रसाद on full plate। सब कुछ प्रसाद बना के मिलता है। So शरीर का खाना क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी। आत्मा का खाना क्या है? तो पहले इंडिकेशन दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, correct thoughts which are the spiritual thoughts, but spiritual thoughts they become spiritual when we are purified, and that purification happens only after when we meditate, chant, do some spiritual practice. Otherwise हमारे thoughts spiritual नहीं होते हैं। इसलिए देखिए, this is the longing in the living entities। वो पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो कुछ नया सुनना चाहते हैं। कितने बुक्स आप पढ़े हैं आज तक? बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे ना यहाँ के बाहर के। कुछ नॉवेल्स पढ़े होंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे आप, कुछ वेब सीरीज देखते होंगे। ये सब दिस इज द थर्स्ट फॉर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये दुनिया। दे वांट टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट, राइट? तो यहाँ पे कहते हैं एम्बॉडीड सोल। सो हम लोग इस शरीर को धारण किए हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी। इस शरीर में कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नी कर रहे हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड टू यूथ टू इवेंचुअली ओल्ड एंड देन इवेंचुअली नेक्स्ट बॉडी। तो अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे? इतना आसान है ये समझना। देहांतरण या फिर ट्रांसमाइग्रेशन जिसको बोला जाता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज इट सो इजी टू अंडरस्टैंड? कोई बोलेगा कि मैं तो बच्चा था, फिर मैं जवान हो गया, फिर मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, फिर मैं मर गया, खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं तो कहीं देख नहीं रहा हूँ आत्मा कहीं से कहाँ जा रहा है, राइट? बट आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल and in the journey of self discovery course. So now यहाँ पे लास्ट में कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर यानी कि जो व्यक्ति सोबर है वो इससे bewildered नहीं होता है, ऐसे चेंज से। जनरली जो व्यक्ति मृत्यु के करीब आया है बड़ा दुखी होता है। क्यों? Because he thinks he's going to be over, he's going to be finished. But he wants control and he has no control. Fear. Fear of what? Leaving this material world, leaving all the things behind. Dying. Fear of fear But of dying. why there is fear of dying? Because you may feel कि now nobody is, I'm gone. Nobody is going to remember me. No one is going to be, offering me anything, or my family is going to just whatever I've done was all finished. Finished. मोह वगैरह जो Just remember this. मोह संसार का मोह, हाँ मतलब see. attachment. Yeah. In summary, we all want to enjoy, and these are all different forms of enjoyment. Whether we are attached, whether there is a fear. अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर कुछ थोड़ा हमारे बॉडी को हो जाए
क्या होता है? Panic. पैनिक होते हैं ना? Why? Because we are attached to this body because we want to enjoy with this body. This body is a vehicle or a medium to enjoy. Just like there is a car. जब कार को लगता है, कोई धक्का देता है, स्क्रैच आता है, तो धक्का किसको लगता है? हमको लगता है कार ओनर को लगता है, अरे। बट इंटेलिजेंटली हमें समझना चाहिए कि धक्का कार को लगा है, मुझे नहीं लगा है। To the extent I am attached to the car, to that extent, I will become miserable. मैं ये नहीं बोलना जाके कार को पत्थर से पीटो। But this is an example to illustrate that wherever there is attachment, there is distress also. Anything with which we are attached is definitely going to get finished. Will go away. Not for 1 day, 2 day, 3 day. अभी आप लोग वेकेशन में जाते होंगे, come to an end. आप सोचते हो क्या है 10 दिन के लिए बाहर जाकर वापस तो आऊंगा, बट वो एक बार जाना जो है वो मतलब मरेगा नहीं, नया बॉडी लेगा, बट जो सेटअप बनाया था गया, फिर नया सेटअप वापस, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर पता नहीं कोई मिलेगा मेरे जैसा आपको बोलेगा अरे जेवेस्टी कोर्स करना है क्या वृंदावन टेरेस में? हाँ करना है, चलो जेवेस्टी कोर्स करते हैं। जेवेस्टी कोर्स भी होगा, अच्छा गीता पढ़ाई करनी है क्या? हाँ करनी है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चैंटिंग नहीं करोगे, then again you will come back. See, essence is हम अभी इस समय क्या कर रहे हैं? This is a theory going on, but theory itself is a practical. This what we discuss itself is a devotional form. एक भक्ति का एक अंग है श्रवण करना, बट इसका सारांश है कि हम प्रैक्टिकली भक्ति करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान की आराधना करें, तब जाके हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता है। अभी तो प्यूरिफाई हो रहा है, हम डिस्कस करते हैं गीता तो, बट मेरे जाने के बाद क्या करेंगे आप लोग? टॉरेस्ट ऑफ द 7 days क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू करना होता है ना आगे। Read spiritual books like Yes, that continuation is expressed in the form of devotional activities that you perform throughout the week. Seva. ये कैसा है? जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, बराबर? अभी कॉलेज में जाने के बाद आपने कोई डिग्री ले लिया, उसके बाद उस डिग्री का उपयोग होता है ना आपको जीवन भर, वैसे ही आपको इसका जीवन भर उपयोग करना है। तो कोर्स क्या है? 1 साल, 2 साल में, 3 साल में एंड हो जाएगा, देन क्या करेंगे आप? भागवतम। चलो भागवतम भी पकड़ लिया, 10 साल में खत्म हो जाएगा भागवतम, उसके बाद क्या करोगे? 10 साल। क्या? You repeat. 10 साल। हाँ। श्रीमद् भागवतम गीता को 10 साल लग सकते हैं, but I'll take it forward fast. Don't get panicked. आर्य की ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है हमको। आर्या का हो सकता है PhD भी हो जाए, फिर भी हम लोग किंडरगार्टन में रहेंगे। नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। Yes, so it is like that. तो धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जानता है these are all changes of the body. I am not changing, the body is changing. So that's why यहाँ पर देखेंगे आप, I think हमने डिस्कस किया था, but just to again summarize, हमारे 2 प्रकार के शरीर होते हैं। ये हम एक शरीर है, that is called as gross body. दूसरा हमारा और एक शरीर है, that is called subtle body, that is our mind, intelligence, ego, right? So let us analyze what is the basis of my identity, that is continuing from childhood to youth to adult. बचपन में आप आशीष गुप्ता थे, बराबर है? नाम तो बचपन में दिया होगा, Yes. जब आप 5 साल के थे। अच्छा 10 साल के बाद भी आप आशीष गुप्ता थे, Yes. 15 साल के होने के बाद भी थे, 20 के बाद भी। अभी कितना उम्र है आपका? 44. 44। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। Yes. आप कॉलेज गए होंगे, डिग्री लिया होगा, फिर आपका शादी हुआ होगा, बच्चे हुए होंगे, बिजनेस आपने आगे पीछे हुआ होगा, अपने घर चेंज किया होगा,
but still you are the same, Ashish Gupta. you are not changed. ये आपको कैसे मालूम पड़ता है that you are not changed? You still feel I am the same Ashish. I am not changed. My body is changing, but I am not changing. So अभी आजकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि मेमोरी किधर स्टोर रहता है? Hippocampus. किधर? हाँ, ब्रेन में. Frontal lobe में ना? हाँ, जो भी बोलते हैं, बहुत सारे टर्म देते हैं लोग. वो क्या क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, बट दे डोंट नो स्पिरिचुअल मैटर्स. अच्छा है. अब मेडिकल वाले. अच्छा, आपके पार्टनर. मेरा बेटा है वो। वही मतलब अभी बिजनेस. Yes. पार्टनर नहीं है, ओनर है। मतलब अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग चल रहा होगा ना? ये हो गया ट्रेनिंग. अभी तक मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने बाप के अंदर, तो ये भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो बॉयहुड टू यूथहुड टू एडल्ट. ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन. Yes. तो लोग बोलते हैं कि मेमोरी यहाँ पे स्टोर रहता है. यहाँ मतलब अभी एक सामान्य आदमी की भाषा में दिमाग, ब्रेन के अंदर, चाहे आप उसे कुछ भी अंदर बोलो. बट आपको पता है टिल 1995 researchers they used to think that brain cells do not change, but after 1995 they found out that brain cells they change. तो अभी अगर आपके ब्रेन सेल्स चेंज होते हैं, लाउड है ना, थोड़ा कम करो वॉल्यूम थोड़ा. ब्रेन में प्रेशर आ रहा है ना, सराउंड. अच्छा, रिसाउंड हो रहा है. बाउंसर जा रहा है basically। क्या हो रहा है? बाउंसर जा रहा है। बाउंसर जा रहा है? नहीं नहीं नहीं. हरे कृष्ण. थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा, हल्का सा. हरे कृष्ण. The story is very grave today. Why? Because elections are coming. क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने खाना प्रसाद खाया। आप लोग बचपन में दोस्त थे स्कूल में? वो बुढ़ा है मेरे सामने। Excuse me, how would he be in my school? क्या पता प्रोफेसर रहेंगे? नहीं, we were in a girls' school। Okay. So memory is stored within the Brain. brain cells, but they say brain cells are changing. Just like you take one tissue paper or any paper, you write down your name, and then you take eraser and erase. Erase हो गया ना? या फिर उसके जो पेपर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो और कंप्लीट नया पेपर लेके आओ, तो जो लिखा था वो गायब हो गया. तो ब्रेन सेल्स भी जहाँ पे आपने लिखा था वो तो गए और नया है, तो मेमोरी कहाँ स्टोर है फिर? किधर है मेमोरी? Okay. Now he has gone to next level. So this is second level. एक तो हमने refute कर दिया. Within the gross body there is no memory stored. So you are saying Ashish Gupta, आपको ये कैसे पता चला? Not because of the memory is stored in the, आप बोल सकते हैं मेरे दिमाग में stored है ना memory, उसकी वजह से मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन दिमाग में है ही नहीं memory. Memory कहाँ है? मालूम नहीं. तो ये gross body में नहीं है memory. हमारा ये पहला भाग है शरीर का. दूसरा भाग क्या है? सटल बॉडी, दैट इज मन, बुद्धि, अहंकार. तो कोई बोल सकता है कि मन में स्टोर्ड है, दैट इज द सटल बॉडी, दैट इज वन यूनिट. Intelligence. इसको एक ही पकड़ लो आप, माइंड इंटेलिजेंस को एक ही पकड़ लो. तो कोई बोलेगा मन के अंदर स्टोर्ड है. तो नाउ टेल मी, कौन से साइंटिस्ट ने आज तक प्रूव करके दिखाया कि माइंड करके एंटिटी है करके? कहीं है डॉक्यूमेंटेड माइंड करके ऐसी चीज जिसका पिक्चर है, ग्राफ है, चित्र है? देखा है तो साइंटिस्ट ने दिखाया है? But they believe because they go. You cannot deny because that is there, but they cannot show it. So then, of course, it is. इसको कैसे? With some symptoms you can see. There are few things you can see only with the observation. Just like हवा है, हवा देख सकते हैं क्या आप? लेकिन हवा अनुभव कर सकते हैं, बराबर है? उसी तरह से माइंड है, उसको आप देख नहीं सकते. बट स्टिल माइंड इज ऑल्सो मेटेरियल एंटिटी, इट्स नॉट स्पिरिचुअल. माइंड के लेवल में भी मेमोरी स्टोर नहीं है. कैसे? जैसे कभी कभी एमनीशिया करके आपने सुना होगा, Yes. या फिर पिक्चर में आपने कई बार देखा होगा, और रियलिटी में भी रहता है. वो कुछ बड़ा गिर जाता है सर के ऊपर, मेमोरी लॉस्ट.
मेमोरी कहाँ स्टोर था भाई? अभी अगर मेमोरी माइंड के लेवल में स्टोर है, बोलते मतलब कि ये चला गया, इसका कुछ उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, इसका कुछ हो गया, फिर कुछ दिन बाद उसको और किसी चीज का धक्का लगता है, मेमोरी आ गया। कैसे आ गया? कहाँ था ये मेमोरी? तो एक्चुअली दे डू नॉट नो ओनली कि कहाँ स्टोर रहता है ये, बट द मेमोरी इज स्टोर्ड विद द सोल। इसीलिए देखिए इस जन्म में भी आप ऐसे कई चीजों का अनुभव करते हैं जिन चीजों का अनुभव आपने इस जीवन में कभी नहीं किया है। हुआ कभी ऐसा अनुभव? आपको हुआ है? क्या अनुभव है? Very difficult to say right now. But I Okay. जैसे प्रोग्राम some place कभी ऐसा होता है ना कि कोई मंदिर में जाते होते हैं, शायद मैं यहाँ पहले भी आया हाँ, not just temple, within your daily routine you do some activities। Deja vu। कभी पहले भी किया था। हाँ, Deja vu। कब किया है? इस लाइफ टाइम में तो पता नहीं चल रहा है कब किया था, Yes। बिकॉज एक लाइफ टाइम तो जीते हैं, we have lived Multiple। billions of lives। So this proves that our identity of being continuous, the same spirit soul, is not because of the body, not because of the mind, but it is because of the soul. Hence, proved. Any objections? Yes. So, you know, earlier there was an X population. Today there is an X plus population. Okay. So, is that a birth of a new soul with as the population keeps increasing, or how does that happen? मैं इसे ठीक से समझा नहीं, इसे शुद्ध हिंदी में समझाइए। She needs to contemplate कि जैसे पहले world population was 1 billion. Sorry, first, previously, Maybe before 10 years, the world population was 1 billion. okay, Now it is 2 billion. okay. तो So ये what do you want to extra- say? तो extra 1 billion जो है वो कहाँ से है? मतलब वो जब 1 अगर million सोल addition ट्रांस सोल तो हुआ ना, बॉडी आज 1 मिलियन बॉडी थी कि सोल उसके बाद स्प्लिट में 2 होती है मिलियन हुई। कि सोल तो 2 मिलियन अच्छा, आपका ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना पॉपुलेशन का, वो बराबर है क्या? कभी वेरीफाई किया? नहीं किया। हाँ, फर्स्ट थिंग, प्रभुपाद को किसी ने इसलिए बोला था कि इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो प्रभुपाद बोले देयर इज नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जितने लिविंग एंटिटीज है उतने ही रहते हैं, 84 lakh species। या 84 लाख स्पीशीज से कम तो नहीं होने वाला, शास्त्र में वर्णित है वो पहले से। तो ऐसा है ना, एक बच्चा बन के ह्यूमन बना, ह्यूमन बन बस वही चीज़ है, फॉर्म चेंज। form change। या दैट इज देयर। That is there, agreed, but everywhere there is either there is an extinction or a explosion. So you want to say extinction of the species, what Darwin said? Yeah. We coming back again। मतलब जैसे भी what you say कि एक चींटी थी, आज का क्लास इसी में खत्म हो जाएगा। डार्विन ने क्या कहा मालूम है क्या? डार्विन ने कहा देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ द, 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। डार्विन ने कहा देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी। पहले क्या था? सिंगल सेल, फिर डबल हो गया, फिर धीरे 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 करते करते ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, बंदर हो गया, फिर इंसान हो गया, बराबर है। बट डार्विन ने आज तक एक भी प्रमाण नहीं दिया है, वो हमेशा कहते आ रहे हैं मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। वो मिस हो गया, उसका लिंक अभी तक नहीं मिला है हमको, लेकिन देयर इज नो लिंक अवेलेबल कि कैसे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम मंकीज टू ह्यूमंस। सेकेंडली, वो जो कहते हैं ना कि फायर का इन्वेंशन हुआ या व्हील का इन्वेंशन हुआ, वेदों पुराणों में तो पहले से व्हील और फायर सब कुछ चलता आ रहा है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एडवांस। अभी का नहीं है, रामायण आपने पढ़ा होगा ना, पुष्पक विमान, पहले से प्लेन वगैरह चलते थे। We had nuclear weapons also। हाँ, न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। द्वापर युग में तो कृष्ण ने जो महाभारत में लड़ाइयाँ की उसमें तो सारा वर्णन है। सो डार्विन को बेचारा उसने कहीं से कुछ उठा लिया महाभारत रामायण में से और अपना बना दिया एक थियरी। सेकेंडली व्हाट डार्विन सेड, इवोल्यूशन ऑफ बॉडी होता है, बॉडी का इवोल्यूशन नहीं होता है, सोल का इवोल्यूशन होता है थ्रू बॉडीज। सो व्हेन सोल इज ट्रांसमाइग्रेटेड फ्रॉम
पहले एक वेजिटेबल की बॉडी में था, फ्रॉम वेजिटेबल बॉडी इट विल गो टू एनिमल बॉडी, फ्रॉम एनिमल बॉडी इट विल गो टू ह्यूमन बॉडी। ऐसा सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। एंड आप जो बोल रहे हैं कि पहले इतना पॉपुलेशन था और अभी एक्सप्लोजन हो गया, इसमें आई डोंट एग्री कि ये पॉपुलेशन का डाटा बराबर है, क्योंकि जितने जीव जंतु है उतने ही हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। 84 लाख जितने स्पीशीज बोले हैं उतने स्पीशीज उतने ही हैं, राइट। Is that okay with you? Maybe we'll come around it eventually. Hare Krishna. Thank you. One last question. Yeah. Since we say we are the soul and we always take different bodies, so then why during time of death do we feel sorry for the person who has departed? We should feel happy that he has left that old body and he is going to go to a new one, into a new, better one, and reach the body that he had. He had suffered so many diseases. So why we feel sad? Yes. Why don't we become happy? We should be happy that he is going to be going to a different body, in a better body, and his life is going to be better. So we should be happy for it. So let us be happy. That's what I'm saying. We should be happy for it. Why we always feel sad? But we feel sad because the person, we miss his association. Attachment. See, attachment, I'm not talking about material at material level. I'm talking even at the spiritual level also. Even a devotee will cry when another devotee passes away. He will rejoice because he is going back to Godhead. But he will feel sad because now I miss the company of the devotee. In his company, I was able to chant nicely. I was able to read Gita nicely, right? So we miss that spiritual part. Not that because he is going, I am happy, definitely. I am happy for him, but I am sad for myself. But then again, you will be attached to. This is spiritual attachment, not material attachment. When when Abhimanyu died on the battlefield of Kurukshetra, that time when Arjun, Yudhishthira, everyone was lamenting, Vyasdev, he came there and he said, don't lament for him, lament for yourself. He left the world which is full of lust, greed, anger, envy, illusion, madness. You are still in this world of temptations. Be sorry for yourself, not sorry for him. वो तो सेवा करके चला गया, भगवान की सेवा किया ना कुरुक्षेत्र वार में, वो तो भगवान के धाम में चला गया और वहाँ पे सेवा करेगा. Be sorry for yourself. So we cry because we feel separation. So you will realize this aspect when you associate more with the devotees. Right now, our association is just a weekly association, 1 घंटा 2 घंटा. But you will experience this when you become seasoned chanter of the Hare Krishna. And you have no association, you will feel, अरे यार, सत्संग होता है तो जब अच्छा होता है. We miss that for 1 month. Yes, we miss. We miss. Not that because of me, but that's the spiritual association we are having right now. That we miss. So like that. So this continuation of the body from youth, old age, is because of the identity that I am the same person is because of spirit soul, not because of the body. Right? Like that. That's what Prabhupada also expressed in the purport. So जो आपने प्रश्न पूछा है वो भी प्रभुपाद ने फर्स्ट पैराग्राफ में उत्तर दिया है. That Arjun should not lament, he should be happy. Right? कि भीष्म द्रोण इनको तो नया शरीर मिलने वाला है, क्यों दुखी होने की जरूरत है अर्जुन को. And then of course in the second paragraph प्रभुपाद उसको ये करते हैं, किसको? मायावाद थियरी को. हाँ, तो I will just read one line. उसमें कहते हैं the Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained. तो oneness मतलब क्या बोलते हैं? सारे आत्माएं एक बार में एक जगह जाके मर्ज होके एक आत्मा बनेगा. बराबर? यही बोलते हैं ना? It will not be one last time. मतलब हम क्या हो जाएंगे? वो क्या बोलते हैं उसको? We will merge into. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा. और सारी आत्माएं परमात्मा में जाके समा नहीं जाएंगी.
हम जाके भगवान को एम्ब्रेस करेंगे, बट हम उनके शरीर में जाके गायब नहीं हो जाएंगे, राइट? तो कल मेरे को एक बोला था खोपड़ी में एक मायावादी, बोलने लगा एक रूप होना है हमें, एक रूप। मैं बोला आपका भगवान कौन है? बोला मैं नहीं बता सकता। मैं बोला सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है? बोला नहीं बता सकता मैं, वो साधना करके मालूम पड़ता है। So they have this word generally and so many confusions. मैंने कहा हरे कृष्णा, प्लीज चैंट हरे कृष्णा। वो डिबेट कर रहा था, मैं बोला जाने दो, डिबेट करके कुछ फायदा नहीं। सो प्रॉपर बोलते हैं कि क्यों नहीं कर सकते उसको। यहाँ पे थियरी मोनिज्म का, वननेस का, प्रॉपर कहते हैं ऑन द ग्राउंड दैट द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस एज अ फ्रैगमेंटल पोर्शन। आत्मा को कट नहीं कर सकते। Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. आत्मा चेंज नहीं होता है ना। अभी और आगे डिस्कशन आएगा तो जैसे कि यहाँ से प्रील्यूड है, आत्मा कभी चेंज नहीं होता है, आत्मा जो है वही रहेगा, राइट? Like that. So you can read that purport later. We go to the next verse. Then the 14th verse. Now see, ये जो 13वां श्लोक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट श्लोक है नंबर 14 and 15. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्यस ताम स्थितिक्षव भारत. पढ़िए ट्रांसलेशन. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sire of Bharata, and the one must learn to tolerate them without being disturbed. हरे कृष्ण. आपको नया नया वर्ड्स मिलता होगा गीता पढ़ते समय. This is Prabhupada's British वाला इंग्लिश है वो. So Prabhupada says, Krishna says, आप बोलेंगे अचानक आत्मा के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे टॉलरेंस के ऊपर कहाँ से आ गए? सहन करो सहन करो. आत्मा के बारे में बता रहे थे, यही तो सीक्रेट है. यहाँ पे क्या कहते हैं कि मात्रा यानी कि सेंसेस, मात्रा स्पर्श, सेंसरी परसेप्शन. तो कौन थे मतलब अर्जुन है. अर्जुन देखो, तुमको कभी कभी गर्मी होगा, सहन कर लो. कभी सर्दी लगेगा, सहन कर लो. क्यों? आप बोलेंगे मैं तो एसी लगा लूंगा, गर्मी हो रही थी, तो सर्दी हो रही तो मैं हीटर लगा लूंगा, राइट? फिर आगे कृष्ण कहते हैं आगम अपायनो अनित्यस. इन चीजों को क्यों टॉलरेट करना चाहिए? क्योंकि ये कैसे हैं, जैसे जीवन के सुख दुख रहते हैं, वो कैसे होते हैं? आते जाते रहते हैं. कभी सुख मिलता है तो हम चैंटिंग बंद नहीं करते. चैंटिंग क्या करते हैं हम लोग? मंदिर जाना चालू रखते हैं. जब दुख आता है तो हम चैंटिंग बंद करते हैं? नहीं करते. मंदिर जाना, ऑफिस जाना, घर में अपना कामकाज करना, we don't stop our duties, right? Because of the temporary inconvenience. So now if you see शीत उष्ण यानी कि गर्मी और सर्दी, ये किसको अफेक्ट करते हैं? बॉडी को. सुख दुख किसको अफेक्ट करते हैं? माइंड को. बॉडी को करते हैं, बट थ्रू बॉडी इट अफेक्ट्स द माइंड, राइट? सो भगवान कहते हैं यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द सटल बॉडी और द ग्रॉस बॉडी. आप आत्मा है तो शरीर यानी कि जो स्थूल शरीर है उसको होने वाले सुख दुख या फिर मन को होने वाले सुख दुख, इससे विचलित मत हो, अपना कर्तव्य करते रहो. अभी इस समय अर्जुन को क्या दुख हो रहा है? अरे अरे मेरे घर वाले मतलब तुम्हारे शरीर से संबंधित है, तुम्हारे नहीं है वो. आपने कब से उनको अपना ओनरशिप दिखा दिया? जस्ट बिकॉज कुछ 20-25 साल वो साथ में रहे, संसार में आए, तो क्या तुम्हारे हो गए? Why you are giving your, trying to possess them. possession किसको किया जाता है? जो अपना होता है. अभी इस समय हमारा क्या है? ओनली ड्यूटी.
इवेंचुअली ये होता ही है किसी भी गृहस्थ आश्रम में। पहले क्या होता है, खंडाला बराबर ना? 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद हरे कृष्ण, यू प्लीज स्टे देयर, आई एम हियर, आई विल सर्व यू, यू प्लीज सर्व मी। बराबर है कि नहीं? बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। एक ही आदमी के साथ रेगुलर बोर हो जाते हैं। हम लोग आश्रम में कभी भी थक जाते हैं, वही सेम ड्रेस, सेम हेयर स्टाइल, सेम तिलक, कुछ भी चेंज नहीं होता है। स्टाइल तो है ही नहीं। मतलब जो भी है, यहाँ कम से कम आप लोग ड्रेस चेंज होता है, कलरफुल, कभी कभी बाहर घूमने जगह चेंज होता है, हम लोग एक ही जगह रहते हैं। ऑलमोस्ट प्रसाद भी सेम रहता है, वही मेन्यू रिपीट होते रहता है हफ्ते भर में। और कुछ हमारे कुक ऐसे हैं, उनका मेनू फिक्स रहता है 365 दिन। मतलब वो जो बनाते हैं, हम 3 कुक है वहाँ पे मंदिर में, मैं हूँ, एक दूसरे 2 ब्रह्मचारी है। मेरा जो फिक्स है वो फिक्स ही है, हफ्ते के सोमवार मंगलवार मेरा कुकिंग रहता है, जो मुझे बनाना है वही मैं बनाता हूँ थ्रू आउट द ईयर। मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलता है कम से कम 2 दिन तो मेरा काम हो गया। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता है, यार ये खाना पड़ेगा। तो सिमिलरली जो दूसरे 2 ब्रह्मचारी है, उनका अपना मेनू फिक्स रहता है, वो भी वही बनाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो उनका जब टर्न आता है तो मैं बोलता हूँ कुछ चेंज नहीं है, लाइफ बिकम्स बोरिंग सम टाइम, बट देन वी हैव टू टॉलरेट। These are all temporary inconveniences because our focus is not on the, just immediate convenience or inconvenience. Our focus is on service, right? तो आपका अभी जीवन का गोल क्या है? अभी 2 आपके हैं, उनको आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है। It becomes the goal of your life. That's why this is the system of गृहस्थ आश्रम। इसलिए लोगों को कहा जाता है रहना है तो साथ में रहो, शादी करके रहो। Don't live like cats and dogs. उससे क्या होता है? There is no mission, there is no goal to the life. Then life becomes like a animal. Then there is no religion. Then अपना भी खुद का सत्यानाश होता है, दूसरों का भी हरि बोल, सब संसार खत्म कर देते हैं। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कहते हैं टॉलरेट करो। अभी आपको दुख हो रहा है ना कि मार रहे हो उनको, या फिर उनको आप उससे दूर चले जाओगे, टॉलरेट इट, क्योंकि ये टेम्पररी इनकन्वीनियंस है फॉर देयर बेटरमेंट ओनली, नॉट दैट आप उनको मारेंगे तो इसमें आपका ही राज्य में आपको लाभ, उनका भी लाभ होगा। ट्राई टू सी इन द स्पिरिचुअल लाइट, राइट? इसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे परपट में एक सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं। The first line, in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearances of happiness and distress, right? In the Vedic injections, one has to take his bath early in the morning, even during month of Magh, January, February. अभी तो आप लोग हीटर लगाते अलग बात है। This is a purport for those who live in the Vrindavan. All the Babajis and sages, they take cold shower in the Yamuna. और बाहर अभी भी देखा होगा बहुत सारे हैंड पंप रहते हैं, यहाँ लेते हो लोग कड़क सर्दी में भी। लेकिन इससे भी आपको दूसरा एग्जांपल प्रभुपाद आगे देते हैं जो रिलेट होगा। प्रभुपाद कहते हैं, it is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June. आपने किचन में एसी लगाया है? नहीं ना, गर्मी होगा तो हीट पे करना पड़ता है ना काम। One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriya, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. तो अभी इलेक्शन हो रहा है, घर के 2 लोग भी आपस में भिड़ रहे होंगे, प्रतिद्वंदी बनकर करेंगे वो लोग, क्यों? क्योंकि ड्यूटी है वो, राइट? Similarly, Prabhupada says, आगे थोड़ा आप जाएंगे तो one has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya or illusion, right? So like that.
तो इस तरह से हमें इसे टॉलरेट करना पड़ता है, यू नो। सो इन समरी, इफ यू वांट टू एनालाइज, हमें टॉलरेट करना है क्योंकि पहली चीज, अगर कुछ इनकन्वीनियंस है और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, जस्ट टॉलरेट। दिस इज द आंसर टू वन ऑफ योर क्वेश्चंस। Something we cannot do anything, we can't do anything. Because life is like that. Just tolerate. Right? This is first principle. Second principle, it is temporary. ऐसा नहीं कोई ऐसा सिचुएशन बना रहेगा हमेशा, it will change. इस संसार में सुख भी चेंज होता है, दुख भी चेंज होता है। सेम सिचुएशन हमेशा बनी नहीं रहेगी, बदलेगी वो। इसलिए जब सुख होगा ज्यादा, उसमें इंटॉक्सिकेटेड मत हो जाओ, क्योंकि वो चेंज होने वाला है। ज्यादा इंटॉक्सिकेशन में रहोगे, जब चेंज होगा बड़ा तकलीफ होगा। इसी प्रकार दुख आएगा, इतना भी डिप्रेशन में मत जाओ कि गोली खानी पड़े, क्योंकि वो भी चेंज होगा। वो ऐसे रहने वाला नहीं, संसार का ऐसा नियम भगवान ने बनाया है, जस्ट टू मेक यू गो ऑन। कि बेटा चलते रहे तू, थोड़ा तुझे दुख दूंगा, थोड़ा सुख दूंगा, और तुझे ऐसे भ्रमित करूंगा, तुझे लगेगा अरे वाह सुख आ गया, सुख आ गया। फिर 2 महीने बाद वापस दुख आ गया, मैं खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अरे जिंदा है ना, 2 हाथ कान नाक सब काम कर रहा है ना। जब तक तू जिंदा है तब तक काम कर सकता है। स्टॉक मार्केट दूसरा कुछ कर ले, लेकिन तू खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। गीता मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हैं भगवद गीता को। ये मत सोचिए कि जस्ट स्पिरिचुअली आपको ये करने के लिए बताया जा रहा है। गीता हैज, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल इज द मेन, बट इसके मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हैं इसको। दैट्स व्हाई गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल बुक if you ever want to refer. You can use it in your business also. Sorry? You can use it as in your business also as a mark. Yeah. There are many sutras. Yeah. यही सूत्र लो ना अभी। लॉस होगा, don't take tension. प्रॉफिट का टाइम भी आएगा। प्रॉफिट होगा, don't just हाँ कि अरे प्रॉफिट आ गया, वाह। आज से चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली है। I think कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं इधर। Please chant, because chanting is not we are doing for any relief from material problems. We are doing it for permanent exit from this world. Neeraj too. Yes. Exercise किया आज? प्रसाद ready है, भले it's coming. Prasad is also my favorite because it is prasad, mercy of the Lord. So इसलिए 2 चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए हमें। कुछ चीजों को हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे देखो, इसको मैंने कल बोला था, बोला पेड़ को फोन करना, मतलब उसको बोला था, सो गया रात को, सुबह मैंने फोन किया उसको, बोलता है तबीयत डाउन है, मैं तो नहीं आ रहा हूँ। सो आप सोच लीजिए कितना गुस्सा आया होगा मेरे को। तो मैं नोट्स पढ़ रहा था, यही सब श्लोक पढ़ रहा था। मैं बोला ठीक है, टॉलरेट टेम्पररी है, ठीक है, टॉलरेट करना पड़ता है। ऐसे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जब स्पेशली लोग आप जो कहते हैं और वैसा करते नहीं है, सबसे टफ रहता है वो, है ना। इसलिए उस दिन मेरे को किसी ने कोट भेजा अचानक, I was just going through something which was really intolerable, तो अचानक आ गया कोट, don't expect, don't assume। कोट भेजा उसने कुछ तो, बोला don't expect, बराबर है यार, expectation is the cause of our stress, and don't assume also that the person will either reciprocate or not reciprocate with you। अगर व्यक्ति आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हैं। ये होता है ना, आप किसी को दे रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ एक शब्द से धन्यवाद भी नहीं बोल रहे हैं, समझने का पिछले जन्म में मैंने बहुत लिया उससे,
बहुत लिया है, अभी मैं उसका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। We learned this in USD course. Search Yeah. of happiness. और अगर रेसिप्रोकेट करेगा तो भगवान की कृपा समझ लेना। ये मत समझना है मैंने दिया इसलिए दे रहा है, नहीं जी, भगवान उसको इंस्पायर करने के लिए दो करके उसको। तो इस तरह से हम टॉलरेट करेंगे तो इससे क्या होगा? वर्स नंबर 50, वेरी ब्यूटीफुल वर्स। यमहीन विधेयन्ते इते पुरुषं पुरुषर्षभ सुखं समान दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अब पढ़िए माता जी, ठीक है, रीड ट्रांसलेशन। अभी आपको बोल रहे हैं सॉरी मुझे क्या लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। चैप्टर टेक्स्ट 50। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. हरे कृष्ण। You're tired. थक जाते हैं, स्पेशली यू नो बाकी लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग नया एंट्री है, सो इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम। तो अभी देखिए ये 3 श्लोकों का सीरीज है। यहाँ पे कृष्ण समराइज करते हुए कहते हैं कि आप अगर इस तरह से टॉलरेट करोगे, राइट, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में इक्वल रहोगे, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम इक्वल इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, यू नो। लेकिन अगर आपने ये किया तो आप क्या हो जाओगे? यू विल बिकम एलिजिबल फॉर लिबरेशन। मुक्ति के लिए आप क्या हो जाओगे? क्वालिफाइड हो जाओगे। तो मुक्ति के लिए क्वालिफाइड होना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? स्थिर। अच्छा, अब स्थिर रहने से क्या होगा? Now here is the answer for your day-to-day practical. You take it a business or your daily life or spiritual life. Here is the answer. क्या होगा इससे? बताइए नहीं माता जी। सुख दुख में आप सम रहेंगे तो क्या रहेगा? What will happen? क्योंकि जो वर्स नंबर 13 है उसको आपको अगर रियलाइज करना है तो वर्स नंबर 14 and 15 are must. When you apply 14, 15, then you can realize 15 that मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं ये संसार के सारे सुख दुख से परे हूँ। जब चोट लगती है मेरे शरीर को लगती है, मुझे नहीं लगती है। इसका मतलब ये है कि मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ, I take the medicines but I am not attached. वाओ, मेरा कितना सुंदर शरीर है, I am not attached. ये यूजफुल है फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज। गाड़ी तुम्हारा कैसा रहता है? गाड़ी जो है ना आपका, हाँ, आपको यहाँ वहाँ जाने के लिए यूजफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी के साथ ही सोते हो उधर जाकर रात में, नहीं ना। You don't become unnecessarily attached to the car. जो अपना ड्यूटी है कर दिया, खत्म, राइट। सो क्या होगा इससे? सुख दुख को हम सहन करेंगे तो क्या होगा? सुख दुख को सहन करेंगे तो शरीर भी सही रहेगा, because you will not go through the stresses, the body will also Yes. function properly.